Hi student, how are you? Myself Arvind Kumar, Physics Chemistry, JNU Godda. Student, in the previous lecture, we have learnt about the type of chemical reaction. So there are 5 type of chemical reaction, and we have discussed already about the combination reaction and decomposition reaction. So today in this session, we will discuss about the displacement reaction, double displacement reaction, and the redox reaction. Okay, so let us start displacement reaction. Displacement reactions. Displacement, it is a combination of the two terms dish and place. Dish means remove, place means it refers the removal of the position or displace. Okay, so for example, we can take an example, that is the iron. Means iron solid. When iron is mixed with the copper sulfate solution, aqueous form, and what will happen? We observe it. We take the two reactants. One is the copper sulfate solution, another is the iron fillings, and observe the some changes. Okay, so we will start the activity, and that activity is that, student, so this is copper sulfate solution, copper sulfate, and we take a few amount in a test tube with the help of a dropper. Okay, with the help of a dropper, and put the solution copper sulfate in a test tube. Okay, so observe the color of the solution in this test tube, that is the blue. Observe the color, that is the blue. Copper sulfate of solution is blue. So write the color, that is blue in color. Okay, so we have taken copper sulfate solution in this, and we put the some iron fillings in this test tube, iron fillings. So, and with the help of this we can perform activity and observe the changes. Observe the changes. So this is the iron fillings, and we put in this copper sulfate solution, and observe the color. Very few amount. We have taken very few amount of iron fillings, and observe the color, and left some time. Then observe, it takes some time for the reaction, but appearance started. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो इसमें धीरे धीरे इसका कलर जो है आप चेंज होना शुरू हो गया है. आप ऊपर में सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसमें इसके कलर को ऑब्जर्व करेंगे अगर, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, आपको ये ग्रीन कलर में ग्रीन अपीयरेंस लिए हुए ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया है. सो अगर इसका कलर वो ग्रीन हो गया है, इट मीन्स
there is some reaction and वो जो रिएक्शन हुआ है जो ग्रीन हुआ that is the formation of due to the formation of iron sulfate. आयरन सल्फेट का जो एक्वा सॉल्यूशन है उसके कारण यह जो कलर इसका है वो कैसा हो गया, वो पैल ग्रीन या लाइट ग्रीन फॉर्म कहते हैं, लाइट green and copper is displaced as you saw. Okay, so this is the example of displacement reaction. Another example we can take zinc Zn in place of the iron copper sulfate solution. And it gives ZnSO4 plus copper. So in these two examples you can see the position or place of the copper is replaced by the iron. And in this reaction copper, the place of the copper in the compound is replaced by the zinc. So zinc sulfate is formed. So okay, ऊपर में क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसके प्लेस को क्या किया गया, वो हटा दिया, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू एग्जांपल यू कैन डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यू कैन डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसको आप लिखेंगे द रिएक्शन इन विच मोर, लिखिए द रिएक्शन in which more reactive metal replaces less reactive metal from its compound is known as displacement reaction. और बच्चों इसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसको, मैंने बताया था पहले भी, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी इसको हम कहते हैं. तो बच्चों ये जो है मैंने इसमें लिखा आपको, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. It means there is a reactivity series on the basis of less reactive or more reactive. इसके आधार पर हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं और उसी के आधार पर हम लोग क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, whether a reaction is possible or not. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये दिया, अब आपसे मैं ये कहता हूं, इसी में मैं कहता हूं कि FeSO4 आपने लिया और इसमें आप कॉपर को पुटअप करें और अब बताइए कि रिएक्शन होगा कि नहीं. अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा. यू हैव टू एक्सप्लेन इट, है ना. यानी कैसे करेंगे इसको हम लोग, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें हम कॉपर के फिलिंग्स को डालेंगे और देखते हैं कि क्या कलर वो चेंज होता है कि नहीं. अगर कलर चेंज नहीं हुआ इसमें से रिएक्शन नहीं हुआ, अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो व्हाई, क्यों नहीं हुआ, यू हैव टू एक्सप्लेन. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द सच प्रॉब्लम और in order to decide that whether a reaction take place or not, we have to remember the reactivity series of the element. वो बहुत लंबा है बट आपके केस में आपके लेवल पे मैं वो बहुत छोटा कर दिया हूं और उसको आप देखें. तो रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लिखते हैं
So that is potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, कार्बन, जिंक, फिर आयरन है, जिंक, आयरन, टी, लेड, हाइड्रोजन एंड Ag, Au एंड प्लैटिनम। तो बच्चों अगर इस तरह से हम ऊपर जाते हैं ये, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। जो जो आपकी जरूरत का चीज है मैं उसको बताया हूं। इसमें और एक लंबे ज्यादा एलिमेंट्स की संख्या है, बट आपको मैं छोटा रूप में दिखाया हूं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, है ना, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब बच्चों ये देखिए, द एलिमेंट विच आर in the upper part is the more reactive than the element of the that lower part। जो एलिमेंट ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव होगा नीचे वाले से। तो अगर नीचे वाले के सॉल्यूशन में हम रिएक्टिव एलिमेंट को डाल दें, मेटल्स को पुट अप कर दें, तो रिएक्शन हटाएगा, रिएक्शन होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, यू हैव टू कंपेयर द आयरन एंड कॉपर। सो कॉपर, आयरन इज द अपर प्लेस देन द कॉपर, है ना। कॉपर क्या है, वो नीचे है, कॉपर नीचे है, कॉपर लिख देते हैं आपको, मैंने नहीं कहा था, किया है। हाइड्रोजन के बाद आप कॉपर दे दीजिए, कॉपर, हाइड्रोजन एंड कॉपर। आप यहाँ पे देखिए बच्चों कि हमें कंपेयर करना है, क्योंकि हमने एग्जांपल में क्या लिया है, आयरन को लिया है और कॉपर को लिया है। सो आयरन इज द अपर पार्ट, एट द अपर पार्ट मीन्स आयरन इज द मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन मिक्स करेंगे तो कॉपर को वहां से वो हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। मीन्स ये रिएक्शन टेक प्लेस। आपको यहां कंपेयर करना है जिंक और कॉपर से, तो कॉपर एंड जिंक, जिंक इधर है, तो जिंक कहां अपर प्लेस में है कॉपर से, इट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो रिएक्शन टेक प्लेस। अनदर एग्जांपल में दिया है आयरन सल्फेट और कॉपर, so you have to compare the iron and copper. So copper is the less reactive than the iron, copper is the less reactive than iron, so copper does not able to replace the iron from their compound, it means its reaction के बारे में हम कहेंगे तो no reaction take place, यह रिएक्शन संभव नहीं है। तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना होगा, और इस रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर यू कैन एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट द वेदर रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। वेरी सिंपल, और ये क्वेश्चन पूछता भी है, इसलिए आप इसमें ध्यान देंगे, ये पूछता भी है तो आप इसको ध्यान देंगे। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट हमारा है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। इसी में डबल डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी सी अंतर है, और दोनों को आपको डिफरेंशिएट करने के लिए भी आता है, इसलिए आप ध्यान से इसको समझें। वो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग में बस थोड़ी सी अंतर है, और क्या अंतर है तो सबसे पहले इसको लिखिए आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो फॉर एग्जांपल, मैं आपको अब एग्जांपल देता हूं और उसी से हम लोग ये बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो एक एग्जांपल आपका है सोडियम सल्फेट, या मैं एक आपको एक्टिविटी करके दिखाऊंगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, दोनों एक्वस फॉर्म में ले लेंगे हम लोग, एक्वस, और ये क्या देता है हमको, सो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड के फॉर्म में है और ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको हम लोग सॉलिड अगर है
तो वह क्या होगा, वो पॉट में नीचे की ओर जम जाएगा। सो वी विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्टिविटी वी कैन एक्सप्लेन इट। ओके, तो चलिए बच्चों, हम इसको आप देखते हैं, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, क्या लेना है बच्चों, सोडियम सल्फेट का क्रिस्टल लेंगे और सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल को लेकर के उसमें हम वाटर मिक्स करेंगे, मीन्स उसको हम लोग एक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो बच्चों आप इसमें देखिए, ये है आपका सोडियम, ये है सोडियम सल्फेट। इस सोडियम सल्फेट से मैं कुछ इसकी अमाउंट एक बीकर में लेता हूँ, या एक टेस्ट ट्यूब में ही लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसको हम लोग देखेंगे करके ये क्या होता है ना। सो बच्चों इसमें थोड़ी सी समय तो लगेगी ही, बट हम लोग एक्टिविटी करते हैं, दैट विल वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये देखिए बच्चों, है आपको ये, और ये आपका है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट का कुछ अमाउंट हम लिए हैं इसमें, और इसमें हम वाटर मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और इसको सॉल्यूशन बना लेंगे। तो इसको वॉल के सहारे, दीवार के सहारे हम इसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं और इसको इस तरह से धीरे धीरे इसको सॉल्युबल कर दें तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। ये धीरे 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 सेकिंग करेंगे और सेकिंग करने में ये सॉल्युबल हो जाएगा। और जब ये सॉल्युबल हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है, एक तो मेरा सॉल्यूशन बन गया और वो बन गया सोडियम, वो बन गया हमारा सोडियम सल्फेट का। दूसरा जो हमें बनाना है बच्चों, दूसरा जो सॉल्यूशन बनाना है वो बनाना है हमें किसका, बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड का। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड, तो इस बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग। तो फिर बेरियम क्लोराइड भी लेते हैं और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार करने के बाद हम लोग उसको मिक्सअप करेंगे। तो बच्चों ये है हमारा बेरियम क्लोराइड, आप देखे होंगे इस पर लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो बेरियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हम लोग पुनः लेते हैं इसमें एक बीकर में, या बीकर में नहीं ले, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, क्योंकि बीकर में ज़्यादा अमाउंट में बर्बाद होगा वो, है ना। इसलिए हम लोग इसको एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, और इसको भी हम लोग इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे और सॉल्यूशन तैयार करने के बाद दोनों को मिक्सअप करेंगे। तो ये बच्चों देख लीजिए, ये हमारा बन गया, ये है बेरियम, ये है बेरियम क्लोराइड। और अगर ये सेकिंग कर रहे हैं इसको हम लोग और देखते हैं ये मिक्सअप होना चाहिए, मिक्सअप हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो इसको हम लोग एक ग्लास रॉड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग एक ग्लास रॉड से भी हम लोग इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। ओके, अब अगर हम लोग ये सॉल्यूशन तैयार कर लिया और दूसरे तरफ मेरा क्या सॉल्यूशन था, मेरा सॉल्यूशन था बच्चों देखिए ये पूरा सॉल्युबल हो गया है। ये जो सॉल्यूशन हम लोग लिए थे, ये सॉल्यूशन किसका था, सोडियम सल्फेट का, ये पूरी तरह से सॉल्युबल हो गया है। और इसको हम लोग अगर इसमें मिलाते हैं इसको, तो आप देखेंगे इसका कलर देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, तो ये जो इसका कलर है वो मिल्की हो गया एंड वाइट प्रेसिपिटेट जो है सॉलिड फॉर्म में इसमें बन गया है। तो अगर ये सॉलिड फॉर्म में बन गया है तो इसी को मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जो रिएक्शन है वो क्या हुआ, कैसे रिएक्शन किया। तो बच्चों मैंने लिया था सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार किया, मैंने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार किया, आफ्टर मिक्सिंग टू ईच अदर ये बेरियम सल्फेट बन गया और ये प्रेसिपिटेट इसको कहते हैं। ये सॉलिड मास बना है टेस्ट ट्यूब में एंड सॉलिड मास जो है वो बॉटम की तरफ जाता है और वो सेटल हो जाता है। और दूसरा हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड का एक्वस फॉर्म। थोड़ी देर तक इसको आप छोड़ देंगे बच्चों तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट
टेस्ट ट्यूब में ये बॉटम में बैठ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ। इंटरचेंज क्या हुआ, इसके साथ में इसका इंटरचेंज हुआ, यानी ये जो सल्फेट था उसके साथ में बेरियम रिएक्शन किया और बेरियम सल्फेट बना दिया। सोडियम के साथ में क्लोरीन का रिएक्शन हुआ और सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो इसको आप बैलेंस भी कर लेंगे, इसको आप बैलेंस भी कर लेंगे। तो Na2 दैट इज इक्वल टू, और अब देख लीजिए Na2 है तो हो गया सल्फेट 1 सल्फेट 1 बेरियम 1 बेरियम 1 क्लोरीन 2 एंड क्लोरीन 2। So this is the best example of a double displacement reaction. There are so many examples, बहुत सारे examples हैं इसके। तो अब इसको आप डिफाइन करेंगे। So that type of reaction, देखिए that type of reaction in which interchange of ions take place is known as double displacement reactions. Double displacement reaction. ओके, क्लियर? मैंने बताया कि इसमें क्या होते हैं, आयंस का इंटरचेंज होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फेट आयन प्लस बेरियम प्लस आयन, कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो पहले जो है कॉम्बिनेशन क्या था, सोडियम आयन का कॉम्बिनेशन सल्फेट आयन के साथ में था बिफोर द रिएक्शन। बेरियम आयन का कॉम्बिनेशन क्लोराइड आयन के साथ था, बट आफ्टर द रिएक्शन ये इंटरचेंज कर गया और बेरियम आयन का कॉम्बिनेशन सल्फेट आयन के साथ में हो गया और सोडियम आयन का कॉम्बिनेशन क्लोराइड आयन के साथ हो गया। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम कोई एक मेटल लिया करते थे और उसमें एक ही कंपाउंड के आयंस को रिमूव किया जाता था। लेकिन इसमें क्या है, दोनों कंपाउंड जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, तो इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना। तो बेसिक डिफरेंस ये है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर के आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। ओके, सो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। ओके, नेक्स्ट में हम लोग एक रह गया रेडॉक्स रिएक्शन, और जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसके साथ में पढ़ेंगे हम लोग कोरोसन एंड रैंसिडिटी। तो ये टॉपिक बच गया जिसको हम लोग थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सी यू। ओके, थैंक्स।